بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى في مقام آخر: وكان الإنسان عجولا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الإنسان خلق هلوعا. وقال تعالى في مقام آخر: إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى في مقام آخر: ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا، اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج سجایا، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا اعزاز اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں متعدد اعزازات عطا فرمائے ہیں، وہاں اس انسان میں کئی ساری خامیاں اور عیوب بھی رکھے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ عیوب انسان میں موجود ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا ان عیوب کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ جیسے میں نے ابھی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات میں ان عیوب کا اور ان خامیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ بظاہر انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور کسی اور مخلوق کو اپنے برابر کا نہیں مانتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ شاید ہی کوئی دوسری مخلوق اس قدر کمزور ہو۔ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، ہمیں روزانہ یہ امور پیش آتے رہتے ہیں کہ اگر ایک مکھی بندے کو تنگ کرنا شروع کر دے تو مکھی سے جان چھڑانی بندے کے لیے دشوار ہو جاتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھ جاتی ہے، یہاں سے اڑاتے ہیں تو یہاں بیٹھ جاتی ہے، یہاں سے اڑائے تو یہاں بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا بلا شریف اور ذو مرتبہ بندہ بڑے مجمع میں تماشا بن جاتا ہے، مکھی سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ بادشاہ سلامت اپنے دربار میں وزیروں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ اس طرح ایک مکھی اس پر مسلط ہو گئی، اور جب بہت تنگ آ گیا تو زج ہو کر کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے یہ مکھیاں کس لیے پیدا کی ہیں۔ ایک وزیر با تدبیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ نے یہ مکھیاں اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم جیسوں کو ان کی اصل اوقات یاد دلاتی رہیں کہ تمہاری اوقات یہ ہیں، مجھ سے جان چھڑا نہیں سکتے۔ مچھر بندے کو تنگ کرنا شروع کر دے تو مچھر سے جان چھڑانے مشکل۔ مدرسے کے طلباء گرمیوں میں مچھردانی استعمال کرتے ہیں، تو میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ تم لوگ امریکہ اور روس کو للکارتے ہو، لیکن مچھروں کے ڈر سے مچھردانی میں رات گزارتے ہو۔
यानी आपको पता है कि इन मच्छरों से जान छुड़ाने के लिए इंसान को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या इंतजामात करने पड़ते हैं। चलो मच्छर तो फिर भी नजर आते हैं, और जब इंसान पर कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा वायरस मुसल्लत हो जाए जो इतना छोटा होता है कि खुर्दबीन के बगैर नजर भी नहीं आता, वो वायरस बंदे पर मुसल्लत हो जाए तो बंदे को बिस्तर पे पहुंचा देता है, बल्कि कई मर्तबा अस्पताल में पहुंचा देता है, बल्कि कई मर्तबा कब्र में पहुंचा देता है। आज से चंद साल पहले की बात है, कोरोना ने पूरी दुनिया को घुमा के रख दिया। ऐसा वायरस जो नजर नहीं आता, खुर्दबीन से देखा जाता है, ये जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस और सब कुछ फेल, और लोग परेशान थे कि हम जान कैसे छुड़ाएंगे। तो बज़ाहिर अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला इंसान हकीकत में इतना ज़ईफ और कमजोर है कि शायद ही दूसरी मखलूक इतनी ज़ईफ और कमजोर हो। ये एक आयब है। दूसरा आयब इस इंसान में ये है कि ये जल्दबाज है। जब भी कोई काम करता है सब्र नहीं है, बस फौरी उसका रिजल्ट मुझे मिल जाए। सुबह के वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, 2 खुराकें ले लेता है, शाम को कहते हैं मैं ठीक न हुआ, एक और डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। वो रात के वक्त 2-3 खुराकें, रात और अगले दिन को 2-3 खुराकें ले लेता है, अगले दिन फिर किसी और डॉक्टर के पास जा रहा होता है, कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। जल्दबाज। कारोबार शुरू करते हैं, 2 महीने बाद कहते हैं यार कारोबार का फायदा ना हुआ, अगला कारोबार शुरू कर देते हैं। शादी हो जाती है, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, अभी औलाद की कोई आसार नजर नहीं आते, तो घर के सारे लोग पूछना शुरू कर देते हैं क्या मसला है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई खुशखबरी नहीं है। मेरे पास एक नौजवान आया और कहने लगा कि शादी को 5 साल हुए हैं, अभी तक औलाद नहीं हुई। 5 महीने हुए हैं, शादी को 5 महीने हुए हैं, अभी तक औलाद नहीं हुई। मैंने कहा खुदा के बंदे, 5 महीने में जो औलाद होती है वो अच्छी नहीं होती है, कम से कम कुछ तो सब्र कर लो। यानी इंसान जल्दबाज, और इसी जल्दबाजी की वजह से कई मर्तबा अपना भी नुकसान कर देता है, दूसरों का नुकसान करता है। आए रोज ट्रैफिक हादसे होते हैं। ये ट्रैफिक हादसे क्यों होते हैं? जल्दबाजी की वजह से होते हैं। वो ट्रैफिक जाम हो गई है, न इधर न उधर कोई आना जाना कर सकते हैं, क्यों? जल्दबाजी है। ये बड़ा आयब है इस इंसान के अंदर। तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। इस इंसान के अंदर एक और आयब है। फरमाया कि इन्नल इंसान खोले का हलुआ, इंसान बड़ा हरीस पैदा हो चुका है। हलुआ कहते हैं हैरस की इंतहा को। इतना हरीस कि कमाता है, इतना कमाता है कि अगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, 10 नस्लों तक भी आने वाली कौम कुछ खत्म नहीं कर सकेगी, इतना कुछ उसके पास होता है। लेकिन फिर भी बेचारों को रात को नींद नहीं आती, दिन को सुकून नहीं मिलता, मजीद बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का हाल यह है कि अगर इसको एक वादी सोने की बनी हुई दे दी जाए तो वो तमन्ना करता है कि काश मुझे 2 वादियां मिल जाएं। जब 2 वादियां दे दी जाएं तो ये तमन्ना करेगा कि काश इसका बनाने वाला मैं खुद होता, अपनी मर्जी से वादियों पे वादियां बनाता रहता। वो मशहूर है कि एक नौजवान माशी हालात की वजह से परेशान था, तो लोगों से कहा कि आजकल मेरे हालात ठीक नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूं। तो लोगों ने कहा कि वो सामने एक बुजुर्ग जा रहे हैं, उस बुजुर्ग से दुआ करवा लो, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। ये भागे भागे बुजुर्ग के पीछे गए
तो मुलाकात हो गई, तो पूछा बेटा क्या मसला है। उसने जवाब दिया कि मेरे माशी हालात ठीक नहीं है, परेशान है। तो उन बुजुर्गों पर एक खास कैफियत पारी थी उस वक्त। ये कैफियत कभी कभार बंदे के ऊपर आती है, हमेशा के लिए नहीं होती। एक पत्थर की तरफ इशारा किया कि ये ले जाओ, और जैसे उंगली से इशारा किया कि ले जाओ, वो पत्थर सोने का बन गया। उसने पत्थर उठा लिया, अल्लाह वाले जा रहे थे, पीछे पीछे फिर भागा जा रहा था। कुछ अब क्या चाहिए, कहते इस तरह एक और पत्थर चाहिए। उन्होंने एक और पत्थर को इशारा किया कि ये ले जाओ, वो पत्थर भी सोने का बन गया, वो ले झोली में डाल दिया। फिर पीछे पीछे भाग रहा था, पूछा अब क्या चाहिए, तो जवाब दिया कि अब ये उंगली चाहिए, ये उंगली चाहिए जिसके इशारे से पत्थर सोना बन जाता है। मकसद यह है कि फिर बंदा चाहता है कि ये वादियों का बनाने वाला मैं खुद होता, अपनी मर्जी से जितना चाहता उतना बनाता रहता। हरीस। और इस इंसान के अंदर एक और आयब है कि ये बड़ा जाहिल है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये बड़ा जालिम है। एक होता है जालिम, एक होता है ज़लूम। बड़ा जालिम, ये इतना जालिम है कि जब ये जुल्म करने पे आता है तो ये अपने दुश्मनों पे जुल्म करता है, ये चाहे तो अपने दोस्तों पे जुल्म करता है, ये चाहे तो अपने अहलो अयाल पे जुल्म करता है, और जब ये जुल्म पे आता है तो अपनी जात पे जुल्म करता है। कि हमें आज मुआशरे में नजर नहीं आता कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप के दुश्मन बने होते हैं, अपने आप को तबाह करने पे तुले हुए होते हैं। पूरी दुनिया समझा रही होती है कि यह रास्ता तबाही वाला है, इस पे न जाओ, बर्बाद हो जाओगे। किसी की बात समझ नहीं आती, अपने ऊपर जुल्म करते हैं। अब वो रिश्तों के मसाइल होते हैं, अब वो कारोबार के मसाइल होते हैं, अब वो बूदोबाश के मसाइल होते हैं। कई मर्तबा बंदे को अपनी तबाही अपनी आंखों से नजर आ रही होती है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आता, जुल्म करता है अपने ऊपर। ये इंसान का बड़ा आयब है। और इस इंसान के अंदर एक और आयब है, जहूला। ये बड़ा जाहिल है। वैसे तो पता नहीं अपने आप को ये किया अल्लामा फहामा समझता है। अफलातून और अरस्तु कहते हैं कि शायद मेरे शागिर्द थे, लेकिन हकीकत ये है कि कई मर्तबा ऐसी जहालत वाले काम करता है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। अपने ऊपर बड़ा एतमाद, बड़ा भरोसा। किसी ने कहा कि अगर आप इंसानों में से किसी इंसान से कहें कि तू दरिंदा है तो वो तो गले पड़ जाएगा। मुझे दरिंदा कहा, तूने मुझे क्या समझा हुआ है, लड़ने झगड़ने पे तुल जाएगा। लेकिन उसी बंदे को आप शेर कहें तो ऐसे चौड़ा हो जाता है, हालांकि शेर दरिंदा ही होता है और कुछ नहीं होता। इंसानी अकल की हालत यह है कि दरिंदा कहें तो बिगड़ जाता है, शेर कहें तो बड़ा खुश हो जाता है। मैंने कहीं तहरीर में पढ़ा कि एक खातून सफर कर रही थी जहाज में, बिरून मुल्क जा रही थी, तो साथ वाली सीट पे एक बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी रोशन ख्याल थे और खातून खुदामत परस्त मुकम्मल बुरके में मलबूस थी, अपने आप को छुपाया हुआ था। तो बाबा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये बाहर की दुनिया में ये लोग जा रहे हैं और ये हमारी मुल्क की बदनामी का जरिया बनते हैं। लोग तो ये कहते हैं। हर हाल बाबा जी ने कहा कि बेटा ये 4-5 घंटे का सफर है और ये सफर तो इस तरह खामोशी से तय नहीं होगा। आप और मैं अगर कोई किसी दीनी मौजू पे बातचीत करना शुरू कर दें तो ये सफर जल्दी तय हो जाएगा। तो खातून ने कहा कि बाबा जी आप बताएं किस मौजू पे बात करना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं तो ये समझता हूं कि इस्लाम ने अगर मुसलमान बेटी को पर्दे का पाबंद किया है, ये इस बेटी के साथ जुल्म है, ये आर है बुर्का पहनना,
ये पर्दा करना मुसलमान बेटी के लिए तहकीर है। अकल ये कहती है कि ये पर्दा नहीं होना चाहिए। उस खातून ने कहा कि बाबा जी ये बात तो हम बाद में करेंगे कि ये पर्दा इंसानी अकल के तकाजों के मुताबिक है या नहीं है। लेकिन मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं कि ये जो गाय होती है, गाय चारा खाती है, घास खाती है, और उसके नतीजे में गाय गोबर करती है, और बकरी घास खाए तो वो मेंगनियां करती है, गधा घास खाए तो वो लीद करता है। आखिर ये फर्क क्यों है? चारा तो वही है, लेकिन गाय खाए तो गोबर की सूरत में बरामद होता है, बकरी खाए तो मेंगनी की सूरत में वही चारा बरामद होता है, गधा खाए तो लीद की सूरत में बरामद होता है। ये फर्क क्यों है? तो बाबा जी ने कहा कि मुझे तो इसका नहीं पता। तो फरमाया उस खातून ने कि जिस बंदे को गधे की लीद और गाय के गोबर का पता नहीं है, वो कहता है कि शरीयत में ये हुक्म ठीक नहीं है और ये खवातीन पर जुल्म और ज्यादती है। वो शरीयत के अहकाम को अपनी अकल से तोलता है, जिस अकल को इतना पता भी नहीं है कि बकरी मेंगनी क्यों करती है और गाय गोबर क्यों करती है। तो हकीकत तो यही है कि इंसान बड़ा अल्लामा फहामा बना फिरता है, हालांकि क्या कुछ गलतियां करता है। सोशल मीडिया पे आप लोग देखते रहे होंगे कि ये लोग तकरीरें करते हैं, बयानात करते हैं, खिताब करते हैं और ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं कि आज तक दुनिया उनके ऊपर हंस रही होती है। इतने बड़े बड़े अल्लामा बने फिरने वाले वो भी ऐसी गलतियां करते। तो इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, ये बड़ा जालिम, बड़ा जाहिल है। अच्छा, मैंने बता दिया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान की मुतअद्दिद खामियां और अयूब बयान फरमाए हैं, और दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम का एजाज इस इंसान की झोली में डाल दिया है। वजह क्या है? इंसान अशरफुल मखलूकात क्यों है? इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत के लिए क्यों चुन लिया है, जबकि इसके अंदर इतनी सारी खामियां और खराबियां मौजूद हैं? तो किसी ने कहा कि इंसान का इम्तियाज और इंसान की खसूसियत इसका इल्म है। इल्म की वजह से इंसान को अल्लाह ताला ने खिलाफत दी है, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। हालांकि ये बात इतनी माकूल नहीं है, क्योंकि अगर इंसान के पास इल्म है तो फरिश्तों के पास भी तो इल्म है, जिन्नात के पास भी तो इल्म है। अगर इल्म की वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात है तो जिन्नात को भी तो अशरफुल मखलूकात होना चाहिए था, फरिश्तों को अशरफुल मखलूकात होना चाहिए था। गोया कि ये वजह नहीं है। किसी ने कहा कि इंसान के पास अकल है और बाकी मखलूक के पास अकल नहीं है। ये बात भी माकूल नहीं है, क्योंकि अगर इंसान को अल्लाह ने अकल दी है और अकल वजह इम्तियाज है तो फिर फरिश्तों के पास भी तो अकल है, जिन्नात के पास भी तो अकल है, तो फिर तो जिन्नात को भी अशरफुल मखलूकात होना चाहिए था, फरिश्तों को अशरफुल मखलूकात होना चाहिए था। गोया कि ये वजह भी नहीं है। वजह क्या है? तो बात समझ लें कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक जज्बा अता फरमाया है जो किसी और मखलूक को नसीब नहीं हुआ, और वही जज्बा इंसान की वजह इम्तियाज है, इंसान की खसूसियत है, और उसी की वजह से अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, और वो है अल्लाह ताला की मोहब्बत का जज्बा। ये इश्क इलाही का जज्बा अल्लाह के अलावा किसी और मखलूक को नसीब नहीं हुआ। फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह के खौफ से करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से नहीं करते। जिन्नात भी अल्लाह की इबादत करते हैं,
لیکن اللہ کے خوف سے کرتے ہیں, اللہ کی محبت کی بنا پہ نہیں کرتے. یہ سورج, چاند, ستارے, یہ بڑے بڑے اجرام فلکی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے خوف سے کرتے ہیں, اللہ کی محبت کی بنیاد پہ نہیں کرتے. صرف انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کے دل میں محبت الہی کا جذبہ موجود ہوتا ہے, اور وہی جذبہ اس کے امتیاز اور اس کے شرف کا ذریعہ ہے, اس کے شرف کا باعث ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم طالب علم تھے, منطق پڑھتے تھے. طلباء جانتے ہیں تو منطق میں انسان کی تعریف کی جاتی ہے حیوان ناطق. یہ انسان حیوان ناطق ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جب طالب علم تھا میں کہا کرتا تھا کہ یہ تعریف جامع مانع نہیں ہے, کیونکہ جیسے انسان ناطق ہے ایسی ہی فرشتے بھی ناطق ہیں, جنات بھی ناطق ہیں. ناطق کا معنی مدرک الکلیات, انسان مدرک الکلیات ہے, جنات بھی مدرک الکلیات ہیں, فرشتے بھی مدرک الکلیات ہیں. تو میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ یہ تعریف جامع مانع نہیں ہے, اصل تعریف یہ ہونی چاہیے حیوان عاشق, یہ عشق اور محبت والا ہے. عشق و محبت کا یہ جذبہ صرف اور صرف انسان کی خصوصیت ہے, کسی اور مخلوق کو ودیعت نہیں کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو فرشتوں کی جماعت میں تھا تو جن لیکن فرشتوں کی جماعت میں تھا, اس کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر لو. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا انا خیر منہ, میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. جب میں اعلیٰ ہوں تو اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیوں کرے, میں اعلیٰ ہوں تو میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس میں 3 عین موجود تھے, چھوٹا عین نہیں تھا. شیطان عالم تھا, شیطان عارف تھا, شیطان عابد تھا. عالم, عارف اور عابد. عالم اتنا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کا علم ہے اس کے پاس. عالم, بڑا علم ہے. عابد, زمین کے چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے. عابد اور عارف, عارف اتنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا میرے دربار سے تو مردود ہے, نکلتے نکلتے اس نے ایک دعا مانگی رب انظرنی الی یوم یبعثون, اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجئے. شیطان کو پتا تھا کہ عین جلال کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا, اس لیے تو اس نے اس وقت دعا مانگی. تو وہ عارف تھا, وہ عالم تھا, وہ عابد تھا, وہ عارف تھا, 3 عین تھے. افسوس کہ وہ عاشق نہیں تھا. اگر وہ عاشق ہوتا وہ کبھی نہ کہتا کہ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ جو انا کر رہا تھا, میں بہتر ہوں, میں اور میں, یہ عاشق نہ ہونے کی نشانی ہے, کیونکہ عشق و محبت سب سے پہلے بندی کے میں کو مٹا دیتی ہے. تو محبت کے جذبے سے محروم. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام تر عیوب کے باوجود, تمام تر خامیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اپنی خلافت کے لیے چنا ہے, اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے, صرف یہ وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہے.
और यही वजह है कि अगर इस इंसान के दिल में मोहब्बत इलाही का जज्बा है तो फिर तो ये अशरफुल मखलूकात भी है और मसजूद मलाइका भी है। और अगर इसमें ये जज्बा नहीं है तो बजा तौर पे कहा जा सकता है कि उलाइका कल अनआम बल हुम अवल्ल, चौपाइयों की तरह हैं बल्कि चौपाइयों से भी गए गुजरे हैं, चौपाइयों से भी गए गुजरे हैं। लिहाजा हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत इंसान की इज्जत और शरफ का जरिया है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि यही मोहब्बत खुदाबंदी हमारे ईमान की बुनियाद है। वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला की मोहब्बत में बड़े पक्के और मजबूत होते हैं। इनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत समाई हुई होती है, बल्कि इनके दिलों पर अल्लाह की मोहब्बत छाई हुई होती है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि एक मोमिन के ईमान की हलावत और मिठास भी मोहब्बत इलाही के साथ वाबस्ता है। याद रखें, जैसे गुड़ मीठा होता है, शहद मीठा होता है, ऐसी ही ईमान भी मीठा होता है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत दलालत करती है ईमान के अंदर एक मिठास है। लेकिन जैसे गुड़ की मिठास हर बंदा महसूस नहीं कर सकता, ऐसी ही ईमान की मिठास भी हर बंदा महसूस नहीं कर सकता। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, गुड़ की मिठास तो हर बंदा महसूस कर लेता है, तो मैं कहता हूं कि नहीं, जो बंदे को बुखार हो जाता है, तबीयत पे सफरा का गलबा होता है, बंदा मीठा गुड़ खाए उसको वो कड़वा महसूस होता है, मुंह का जायका ही कड़वा होता है। तो जैसे मन पर सफरा का गलबा हो जाए तो मीठा गुड़ कड़वा महसूस होता है, ऐसे ही जब किसी बंदे के बातिन पर गुनाहों के सफरा का गलबा हो जाता है तो ईमान की हलावत और मिठास बंदा महसूस नहीं कर सकता। ईमान की हलावत और मिठास को महसूस करने के लिए अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का होना जरूरी है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुम मन कुन्ना फीह वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, तीन खसलतें जिस बंदे में पाई जाए वो ईमान की मिठास महसूस कर लेगा। तीन खसलतें, तीन सिफात अगर किसी बंदे में आ गई तो वो ईमान की मिठास महसूस कर लेगा। उनमें से पहली सिफत अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि बंदे को अल्लाह और रसूल के साथ मा सिवा सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। जब अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो जाए तो फिर बंदा दिल में ईमान की हलावत महसूस करता है। और जब ईमान की हलावत आ जाती है तो नेक अमाल की लज्जत से बंदा आशना हो जाता है। नेक अमाल की अपनी लज्जत होती है। मेरे भाइयों, जैसे मादी दुनिया में कुछ लज्जात हैं, ऐसी ही रूहानी दुनिया में कुछ लज्जात हैं। हमें नहीं पता कि ईमान में क्या लज्जत पोशीदा है, तिलावत में क्या लुत्फ मिलता है। अल्लाह अल्लाह बोलते वक्त बंदे का पूरा जिस्म शीरो शक्कर कैसे बन जाता है हमें नहीं पता। लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाम अमाल में एक खास लज्जत होती है। लज्जत उन लोगों को महसूस होती है जो ईमान की हलावत से आशना होते हैं। मादी दुनिया की अपनी लज्जात, रूहानी दुनिया की अपनी लज्जात हैं। मादी दुनिया में नरम और मुरगन ग़िज़ाएं खाने का अपना मजा है, जबकि रूहानी दुनिया में अल्लाह की खातिर भूखा प्यासा रहने का अपना मजा। वो अच्छे अच्छे खाने की अपनी लज्जत होती है, लेकिन जब बंदे ने शदीद गर्मी के मौसम में शिद्दत की प्यास बर्दाश्त करते हुए रोजा रखा होता है, उस वक्त की लज्जत ही कुछ और होती है। तो नरम और मुरगन ग़िज़ाएं खाने का अपना मजा है और अल्लाह की खातिर भूखा प्यासा रहने का अपना मजा है।
नरम नरम बिस्तरों पे शब्बाशी करने का अपना मजा है, जबकि आधी रात के वक्त अल्लाह के सामने रुकू सजदा करने का अपना मजा है। दोस्तों के महफिलों में खलखला के हंसने का अपना मजा है, जबकि रात की तन्हाइयों में अल्लाह के सामने आंसू बहाने का अपना मजा है। स्क्रीन के सामने बैठ के थरकते जिस्मों के तमाशे देखने का अपना मजा है। कुरान अजीमुशान को खोल के तिलावत करने का अपना मजा है। दूसरों की बेटियों के साथ पूरी पूरी रात फोन पे गुफ्तगू करने का अपना मजा है, जबकि रात के आखिरी पहर अपने महबूब परवरदिगार से मुनाजात के जरिए तार जोड़ने का अपना मजा है। यार दोस्तों के साथ सैर सपाटों पे जाने का अपना मजा है, जबकि अल्लाह की दीन की खातिर दर दर की ठोकरें खाने का अपना मजा है। मादी दुनिया की अपनी लज्जात हैं, रूहानी दुनिया की अपनी लज्जात हैं। काश कि हम रूहानी दुनिया की लज्जात से आशना हो जाते। मेरे हजरत फरमाते हैं, इंसानी नफ्स लज्जात का खूगर है। लज्जत मिलती है तो फिर काम करते हुए थकता नहीं है। काश कि हमें लज्जत एक मर्तबा नसीब हो जाए तो इबादत करना हमारे लिए दुश्वार नहीं होगा। और यही वजह है कि हमारे सलफ सालिहीन जब रातों को इबादत करते थे, आज इंसानी अकल नहीं मानती, नौजवान नस्ल साफ इनकार कर देती कि ये मुमकिन ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी 40 साल मुसलसल इस तरह इबादत करे कि ईशा की वुजू से फजर की नमाज पढ़े? ये कैसे हो सकता है? एक आदमी ईशा के बाद नमाज पढ़नी शुरू कर दे, पढ़ता रहे फजर तक पढ़ता रहे, ये कैसे मुमकिन है? इन हजरात को ये मुमकिन नजर नहीं आता जब उन्हीं लोगों से कहा जाए कि फला बंदा ईशा के बाद किसी के साथ फोन पे बातें शुरू करता है और फजर तक मुसलसल बातें करता रहता है। कहते हैं हाँ ये मुमकिन है। ये इसलिए मुमकिन है कि हमें इस दुनिया की लज्जात का पता है, उस दुनिया की लज्जात का पता ही नहीं है। लुत्फे मैं तुझसे क्या कहूं जाहिद, लुत्फे मैं तुझसे क्या कहूं जाहिद, हाय ए दोस्त तूने पी ही नहीं। जब तूने शराब कभी पी नहीं है तो मैं क्या आपको समझाऊं कि शराब में लज्जत क्या होती है। बंदा जब एक बार लज्जत से आशना हो जाता है फिर छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। बहरहाल हमारी ईमान की हलावत और मिठास अल्लाह की मोहब्बत के साथ वाबस्ता है। और मेरे भाइयों, ये अल्लाह की मोहब्बत बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। एक मर्तबा बंदे को नसीब हो जाती है तो बंदे के कारनामे ऐसे होते हैं कि दुनिया वालों की अकल दंग रह जाती है। दुनिया वाले समझाते रहते हैं कि ये न करो तो ये हो जाएगा, ये न करो तो ये हो जाएगा, जबकि उनको दुनिया वालों की बात समझ नहीं आती। दुनिया वालों को उनकी बात समझ नहीं आती, क्योंकि दुनिया वालों का जहान और होता है और इनका जहान और होता है। और ये अल्लाह की मोहब्बत इतनी अजीम नेमत है कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगा करते थे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, अल्लाहुम्मा जअल्ली हुब्बका अहब्बल अशियाए इलैया हत्ता मिनल माइल बारिद, ऐ अल्लाह आप अपनी मोहब्बत मेरे लिए दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा महबूब बना दीजिए, यहां तक कि शदीद गर्मी में शिद्दत की प्यास की हालत में जो ठंडा पानी बंदे को मरगूब होता है उससे भी ज्यादा आपकी मोहब्बत मेरे लिए मरगूब हो जाए। हुजूर दुआएं मांगा करते थे। लगता यह है कि वाकई ये बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हमें भी अपनी मोहब्बत का एक कतरा नसीब फरमाए। ये मोहब्बत बंदे को कैसे मिल सकती है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगा करें, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे। दूसरा तरीका यह कि हम जिक्र की कसरत करें। कसरत जिक्र की बदौलत
दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाती है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरी जवानी के अय्याम थे, एक अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। मैंने कहा हजरत दिल में अल्लाह की मोहब्बत महसूस नहीं करता। फरमाया अशरफ अली अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। मैंने कहा हाँ अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। फरमाया हथेलियों को रगड़ो। मैंने हथेलियों को रगड़ा। पूछा क्या महसूस करते हो? हजरत हरारत महसूस करता हूँ। फरमाया और रगड़ो। मैंने और रगड़ा। पूछा अब क्या महसूस करते हो? हजरत अब तो यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरी हथेलियों को आग लगी हुई हो। फरमाया अशरफ अली हथेली को हथेली से रगड़ते हो, हरारत पैदा हो जाती है। ऐसे ही जब अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह के नाम की ज़रब दिल पे लगाओगे तो दिल को रगड़ा लगेगा, और जब ये रगड़ा बार बार लगेगा तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत की हरारत पैदा हो जाएगी। कसरत जिक्र की बदौलत दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। और एक वक्त था कि अल्लाह के मोहब्बत के मुतलाशी रात के आखिरी पहर उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबों से अपने सीनों को गरमाया करते थे। चाहिए कि हम अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए जिक्र की कसरत करें। और तीसरा तरीका यह है कि इस रुए जमीन पर कुछ ऐसी कुदसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत की आग लगी हुई है। हम अगर उन शख्सियात के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर ले, ताल्लुक जोड़े, तो उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत की आग हमारे दिलों तक मुंतकिल हो जाएगी। एक दिल की कैफियत अगले दिल पर असर अंदाज हो जाती हैं। ये मुशाहदा है। आप किसी ऐसे बंदे के पास बैठ जाएं जो परेशान हाल हो, जो गमों का परेशानियों का मारा हुआ हो, आप उसके पास बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद आप भी अपने दिल में बेसुकूनी महसूस करेंगे। कहते पता नहीं क्या हो गया, मैं खामखा परेशान हो गया। ये खामखा परेशान नहीं होता, अगले बंदे के दिल का असर बंदे पर पड़ जाता है। अगर कोई अल्लाह वाला है जिसका दिल पुरसुकून है, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, जब आप उनकी सोहबत में बैठते हैं कुछ लम्हों के बाद आप कहते हैं सुकून मिल गया, मुझे इत्मीनान मिल गया। ये अल्लाह वालों की मजलिस में बैठने से सुकून इसलिए मिलता है कि उनके दिल सुकून के खजाने होते हैं। जब भी कोई बंदा उनके पास बैठता है उनके दिलों का ये असर हमारी कुलूब पर पड़ता है। ऐसे ही जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत की आग लगी होती है तो ये आग हमारे दिलों में खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती है। उसूल यही है, खुदा न खास्ता एक घर को आग लग जाए, अगले घर को उससे मुत्तसिल घर को आग लग जाती है। और इसी तरीके से एक सीने में अल्लाह की मोहब्बत की आग लगी होती है, अगले सीने में खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती है। जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत। एक खाना बखाना है, एक सीना बसीना। सीने से अगले सीने में ये आग मुंतकिल हो जाती है। और एक वक्त था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत को पाने के लिए लोग अल्लाह वालों के पास जाया करते थे। कोई साल गुजारता था, कोई 6 महीने गुजारता था, कोई 3 महीने गुजारता था। अल्लाह की मोहब्बत की पुड़िया लेकर वापस अपने घरों को लौट जाया करते थे। आज भी इसी चीज की जरूरत है। अगर हम अल्लाह की मोहब्बत के मुतलाशी हैं तो अल्लाह वालों के पास जाना पड़ता है। कपड़ा लेना होता है, कपड़े की दुकान पे जाना पड़ता है। सब्जी लेनी होती है, सब्जी की दुकान पे जाना पड़ता है। लोहा लेना होता है, लोही की दुकान पे जाना पड़ता है। ऐसी ही अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी होती है तो अल्लाह वालों की दुकान पे जाना पड़ता है। ये खानकाहें, ये अल्लाह वालों की मोहब्बत की दुकानें होती हैं। हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, अशरफ अली कहीं अल्लाह की मोहब्बत की दुकान देखी है? कहीं अल्लाह की मोहब्बत की दुकान देखी है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ी देर सोचने के बाद फरमाने लगे, हाँ मैंने अल्लाह की मोहब्बत की 2 दुकानें देखी हैं।
ایک دہلی میں شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے اور دوسرا شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے. یہ دو خانقاہ ہیں، اللہ کی محبت کی دکانیں ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے موقع کو غنیمت سمجھ لیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑیں، ہم بھی کبھی اللہ کی محبت سے آشنا ہو جائیں. عشق والے نہ دکان اپنی بڑا کر کے چلیں، عشق والے نہ دکان اپنی بڑا کر کے چلیں. طاہر و منصور مجھے دل کی دوا لینے دو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا